हूँ आपके साथ यास्मीन। अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा की फिल्म केसरी जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म की कमाई में इजाफा तो देखने मिला, लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म ओपनिंग डे की कमाई से आगे नहीं बढ़ पाई है। बता दें कि जहां फिल्म ने पहले दिन 21 करोड़ 50 लाख कमाए, दूसरे दिन 16 करोड़ 70 लाख की कमाई की। वहीं अब फिल्म के तीसरे दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। बता दें कि फिल्म ने तीसरे दिन 18 करोड़ 75 लाख की कमाई की है और इसी के साथ फिल्म के 3 दिनों का कलेक्शन 56 करोड़ 51 लाख हो गया है। इस बात की जानकारी खुद ट्रेड एक्सपर्ट तनन आदर्श ने ट्विटर के जरिए दी है। बात करें फिल्म की तो जैसा कि आप जानते हैं, ये फिल्म साल 1897 में सारागढ़ी में लड़े गए एक ऐसे युद्ध की दास्तान है जहां सिर्फ 21 सिख सैनिकों ने 10,000 अफगानियों के छक्के छुड़ा दिए थे। बता दें कि फिल्म को वर्ल्ड वाइड 4200 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। फिल्म में अक्षय की दमदार एक्टिंग ने सभी का दिल जीत लिया है। खैर, अब देखना ये होगा कि अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने में कितना वक्त लेती है। वैसे अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। Niti, thank you so much for coming from your wedding. Means a lot. Midway through your own shadi, you decided to do this for us. That's really lovely. Thank you so much. Thank you. That was, by the way, a joke. She is not getting married. Pariniti, thank you so much for agreeing to be a part of our beautiful narrative. And as I said, you are the smile of the film and also a beautiful tear. And I think every time I see you, there is a smile on my face. And I hope you enjoyed the journey. What do you have to say to us today? I've been saying this a lot in the last 2-3 days since we've been promoting the film. That Kesari was that film where I did not think about the usual silly things like screen time and role and kya karna chahiye, kya hona chahiye ya nahi. I remember when Karan called me to the office, he told me the one-liner of this film and he played our love song that we are going to have in the film. And I said yes instantly. I didn't even have a full narration or anything, but I knew that all these geniuses were making an amazing film and I just wanted to be a part of that film, so that 50 years from now, I can just say that I was a part of Kesari. That's it. I'm so happy. I told Anurag sir, jo bhi picture bana rahe ho, I'll be a tree in the background. It's okay. I just want to be a part of it. So thank you so much, Karan, Anurag sir, Akshay sir, for making me a small part of this film because, like you said, when you were watching me, if you're feeling a smile, I was smiling throughout. Every day when I went on set and I put that dupatta on my head, I felt like the character and I was my happiest. And it's also been my biggest learning. So thank you. And अब मैं अपनी शादी में वापस जा सकती हूँ. बिल्कुल, बिल्कुल. Thank you, Pariniti. Thank you for that. Now, there are so many forces that have come together. There's, of course, I would say the supremely talented Anurag and all of us, Escape of Good Films and Azure Entertainment, Z Studios. All of us have come together to make Kesari. But there is only one indispensable factor and force of Kesari. Like if he had not agreed to do the film, this film would not have seen the light of day and nobody should have made this film. If there was any one actor of Indian cinema who should have portrayed the part of Ishar Singh, it was this man. There was nobody else who can play what he did and has done eventually what he has done. Tirelessly, passionately, and with so much heart that there is no more heart left. Please welcome the biggest force of Kesari, Akshay Kumar. Yeah! Akshay, having known you for very many years and worked with you through the process of making Kesari, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि this film is very close to your heart. It's more than just a film release. It's more than just its box office potential. It's more than just the fact that we are in this business of telling stories. For you, I think this has been an emotional experience and a heartfelt one. Am I right in saying that? Absolutely right. Yeah, so would you share with us and of course all the people who love you about your journey on the film and what you feel like today? See, Karan, मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ अपने सवाल लेके आया हूं. अगर मैं अभी ही सब कुछ बता दूंगा तो फिर जब ये लोग सवाल करेंगे मेरे पास जवाब नहीं होगा. तो इनसे पूछ लें. हाँ, मैं समझता हूं कि काफ़ी सबने बहुत सारी चीज़ें बोली. अगर मैं भी वही सब कुछ बोलना शुरू कर दूंगा तो फिर मैं आई विल बी रिपीटिंग माई सेल्फ. तो मैं यही सबसे दरख्वास्त करूँगा कि हम सब बैठ जाते हैं
और इनको देते हैं क्वेश्चन करने के लिए। आई थिंक दैट बी वेरी गुड बिकॉज आप लोगों ने भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछना है तो उसका जवाब मैं फिर वापस दे रहा होगा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। मैं खड़े रहता हूँ, I'll moderate it. आप लोग बैठ इधर है ना? है, अच्छा ठीक। हेलो अपूर्वा, you got a chair? अपूर्वा इधर है? हाँ जी। Ladies and gentlemen, we're opening the house to questions related to the film, of course. Please feel free to ask us anything, and I say that again with a deep amount of respect related to our film. हाय अक्षय, ज्योति फ्रॉम बिग एफएम। मेरा सवाल ये है जी, आपके सामने है जी। मेरा सवाल ये है कि फिल्म काफ़ी जो ट्रेलर्स है लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, लेकिन आपके लिए पर्सनली कितना इमोशनली और फिजिकली कितना चैलेंजिंग था और कितना ड्रेनिंग था पूरा सिचुएशन जब आप लोग पिक्चराइजेशन कर रहे थे? ओके, सो मेरे लिए चैलेंजिंग बिल्कुल नहीं था, क्योंकि रिसर्च और ये सारी चीज़ें जो थी वो मेरे डायरेक्टर ने सब कुछ करके रखा था। और मतलब हर सवाल का जवाब इनके पास था। करीबन 1-1.25 साल से ये कहानी पे काम कर रहे थे, लिख रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, और कई बार ये पंजाब भी गए हैं पता करने के लिए काफ़ी चीज़ें, और सब चीज़ों का उत्तर यही लेके आए। तो मैं कहूँगा कि जो चैलेंजिंग और रिसर्च पार्ट था वो इन्होंने मेरा संभाल लिया था। बाकी जहाँ रही ये फिल्म की बात, ये फिल्म मेरे लिए बहुत ही एक इमोशनल जर्नी रही है। मेरे पिताजी भी सोल्जर थे, आर्मी में थे, और ये भी एक कहानी उन सोल्जरों की है। मैं जब ये फिल्म कर रहा था तो मुझे बहुत अंदरूनी किस्म की अंदर से ही बहुत फील आती थी, और ऐसी चीज़ें हैं इस फिल्म के अंदर जो कि मतलब मैं विश्वास नहीं कर सकता कि लोग ऐसे भी होते हैं। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 21 सिख, 21 सरदार एक फोर्ट के अंदर हैं, और उनको पता है कि बाहर 10,000 लोग खड़े हैं उन्हें मारने के लिए। मौत तो निश्चित है, लेकिन फिर भी अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, अपने ऑनर के लिए, अपने गुरुओं के लिए ये लोग लड़े। ये लोग लड़े जानते हुए कि क्या होने वाला है, और ऐसा लड़े कि आज अगर आप गूगल में डालो कि 5 सबसे बड़ी बैटल कौन सी है, तो हमारा नंबर 2 पे आता है। ऐसा लड़े ये लोग कि पूरी दुनिया याद रखती है। मैं बस दुख तो इस बात का है कि ब्रिटिश जो है दे सेलिब्रेट सारागिड़ी डे, बट हमारे यहाँ इतिहास के पन्नों में ये कहीं खो गई। इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। लेकिन मैं तो यही चाहूँगा और दरख्वास्त करूँगा कि जितने भी माँ बाप हैं अपने बच्चों को ये फिल्म ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये एक एजुकेशनल फिल्म भी है, इतिहास वाली फिल्म है और सच्ची कहानी है। सिर्फ हम इतना प्रभावित हो जाते हैं जब हम 300 जैसी एक फिल्म देखते हैं, हम सोचते हैं क्या फिल्म बनाई है, जबकि वो फिल्म आप सभी जानते हैं कि एक फिक्टिशियस फिल्म है, लेकिन बहुत अच्छी बनाई। लेकिन ये तो रियल फिल्म है, ये तो रियल लोग थे, ऐसे लोग रियल थे। तो बहुत ही एक आई कैन जस्ट टेल यू बहुत फील वाली रही है। और ख़ास करके जब इन्होंने मेरे डायरेक्टर ने मुझसे वो लास्ट के 15-20 मिनट जो फिल्म के अंदर है वो जो करवाया है, और ये ख़ास करके गाना ये लास्ट में आता है, एक वो वाली जर्नी है जब एक सोल्जर को गोली लगती है और उसके पास करीबन 30 या 35 या 40 सेकंड होते हैं, मृत्यु के एकदम नज़दीक आ चुका है। वो क्या सोचता है, वो 35 सेकंड के अंदर उसके अंदर वो सारी जो उसकी कथा होती है जो बचपन से उसके गुजरी है, माँ बाप से लेके बीवी बच्चे से सब आ जाते हैं। सो ये बहुत ही इमोशनल जर्नी रही है। ये आप जब पिक्चर देखोगे आप खुद ही महसूस करोगे। बस आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप ज़रूर ये लिखें कि मैं चाहूँगा कि इस फिल्म को बच्चे ज़रूर देखें, यूथ शुड वॉच इट बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ लर्निंग प्रोसेस इन दिस फिल्म विच इज़ अ रियल थिंग। मधु BBC हिंदी से Akshay Baji here on the left. First of all, this is Simran Singh here. First of all, thank you to the team for bringing this film, for making a film on this subject.
and thank you for this emotional, heartfelt tribute to the martyrs. My question to you is a concerning question. So your film Kesari tells us about the true meaning of this color. This is the color of sacrifice, valor, and bravery. But how doesn't bother you when you have a contemporary who is using the same color, but he has used as a product with tobacco. So that's my question to you. I don't know. वो केसर और केसरी को दोनों मिक्स कर गए. नहीं, that you know, I'm not naming the brand. Yeah, I'm not naming anything. हम से आपने ऐड बीच में पता नहीं कहाँ से ले आए. मतलब हम कहीं और जा रहे हैं, भाजी तुसी कितने और चले गए हो. तो कोई गल नहीं. लेकिन भाजी I don't think like that. मैंने कभी जिंदगी में अपने ख्वाब में नहीं सोचा था कि ऐसा प्रश्न मेरे पास आएगा. लेकिन कोई बात नहीं. इसके बारे में जैसे आपने मुझसे प्रश्न पूछा, उसका उत्तर मैं सारी जिंदगी लगा लूं, मैं नहीं दे पाऊंगा.